हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल फाइनेंस नो हाउ में। और इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे आईडीटी के सीए फाइनल के एमसीक्यूज़ जो हमारे जैन 2021 एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और आगे की एग्ज़ाम के लिए भी इम्पॉर्टेंट रहेंगे। तो इस वैरायटी के एमसीक्यूज़ आएंगे एग्ज़ाम के अंदर। आपको ये वीडियो देखने के बाद ऐसा लगे कि मैंने आपकी थोड़ी हेल्प करी है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे को मोटिवेट करें ताकि मैं ऐसी और वीडियोज़ बना पाऊँ। हम एक वीडियो 15-15 मिनट का रखेंगे, उसमें हमारे जितने एमसीक्यूज़ होंगे उतने करेंगे, बाकी नेक्स्ट 15 मिनट की वीडियो आएगी, ठीक है। तो इस हिसाब से हम वीडियोस लाएंगे। जो पहला क्वेश्चन है वो है हमारे रजिस्ट्रेशन चैप्टर से। जो एमसीक्यू का फर्स्ट क्वेश्चन है वो हमारे रजिस्ट्रेशन चैप्टर से है। इसमें हमें स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। आउट ऑफ 4 ऑप्शंस, some options are incorrect and some are true. So we need to find out after reading these all 4 statements. ठीक है। An agent supplying taxable goods on behalf of principal where invoice is issued in the name of principal is required to get compulsory registered under GST. So that statement is incorrect क्योंकि वहाँ पे compulsory registration लेना ज़रूरी नहीं है। Second statement, person who are required to deduct tax under section 51 whether or not separately registered under this act are compulsory required to get registered under GST without any threshold limit. That statement is true. Okay. Question statement number 3, every person supplying OIDAR services from a place outside India to a registered person, so that is not applicable ऑन रजिस्टर्ड पर्सन। दैट इज अनरजिस्टर्ड पर्सन होता तो उस केस में रजिस्ट्रेशन लेना कंपलसरी होता, बट इन केस ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन दैट इज नॉट रिक्वायर्ड। द स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। फोर्थ, पर्सन हु सप्लाइंग सर्विस अदर देन सप्लाई स्पेसिफाइड अंडर सबसेक्शन 5 of section 9 through which electronic commerce operator who is required to collect tax under section 52 are compulsory required to get registered under GST without any threshold limit. This statement is also incorrect because in this case compulsory registration is not compulsory, not required. So statement number 1, 2 and 4th, 1, 3 and 4th is incorrect. Correct answer is C. If we talk about question 2, Mr. Lal, a registered person under GST, was the proprietor of a restaurant. He died and left behind his wife and son on 15th August. His son wants to continue the business of deceased father. The GST consultant of this restaurant gave the following advices to the son. How the son could continue the business of deceased father. So which of the following statement is correct? Okay. So there are 4 advices. Out of them, first advice is correct because he need to register himself with his PAN card as a new registration with the same name, okay, under his own PAN and file form ITC 02. So correct answer is A. Other options B, C, D are incorrect. You can also read that options are incorrect. Correct answer is A. If we talk about question number 3, Messrs. Raman Plastic, a manufacturer of plastic toys, okay, if registered person under GST in Simla, Himachal Pradesh, it procures its raw material from Punjab, okay, during the month of April, its purchase material of rupees 35 lakh. So this statement, like this theory which we are reading, that is irrelevant in this question. We are talking the second part, reading the second part, the return of the month of April were duly filed on the time within the due date 20th May, the last date up to which our taxpayer can claim refund of input tax credit on account of inverted duty structure. So सिंपल सा क्वेश्चन ये पूछा है, इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर क्या होता है कि अगर आप इनपुट पे ज़्यादा टैक्स देते हैं और आउटपुट पे कम टैक्स दें तो वहाँ पे इनपुट ड्यूटी स्ट्रक्चर के अंदर आप रिफंड क्लेम कर सकते हो। और उसकी क्या टाइम लिमिट है? टाइम लिमिट उसकी जिस मंथ का ड्यूटी है वहाँ से उस मंथ की जो ड्यू डेट होगी पेमेंट करने की, जैसे अप्रैल मंथ है इसके अंदर, उसकी ड्यू डेट है 20th में, वहाँ से 2 साल के अंदर आप अप्लाई कर सकते हो रिफंड के लिए। सो करेक्ट आंसर इज बी, 20th में ड्यू डेट से 2 साल तक आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4th, मेसर्स जोली इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड इज एन ऑथोराइज्ड डीलर ऑफ मेसर्स जीजी माइक्रो लिमिटेड लोकेटेड एंड रजिस्टर्ड इन द लखनऊ
यूपी इट हैज़ सोल्ड द फॉलोइंग आइटम्स, ठीक है, 5 टाइप के आइटम सोल्ड कर रखे हैं, सबकी रेट दे रखी है, सबका अमाउंट दे रखा है। फिर नीचे लिख के रखा है कि लिमिटेड हैज़ गिवन सिंगल इनवॉइस इंडिकेटिंग प्राइस ऑफ ईच आइटम सेपरेटली, सबका आइटम का प्राइस सेपरेटली दिखाया है। एंड मिस्टर राकेश इज गिवन अ सिंगल चेक ऑफ ₹1 लाख, कोई दिक्कत नहीं है। कंपोजिट डिस्काउंट दे रखा है, तो ये आपको भ्रमित करने के लिए डाला है कंपोजिट, बिकॉज कंपोजिट सप्लाई नहीं है ये, इसके अंदर हर प्राइस को डिफरेंटली इंडिकेट किया है, और ना तो ये कंपोजिट सप्लाई है ना ये मिक्स सप्लाई है। तो यहाँ पे जो इनकी इंडिविजुअल रेट है वो एप्लीकेबल होगी। करेक्ट आंसर इज डी, सप्लाई अदर देन कंपोजिट एंड मिक्स सप्लाई एंड रिस्पेक्टिव टैक्स रेट एप्लीकेबल टू ईच आइटम। ओके, करेक्ट आंसर इज डी। बात करें क्वेश्चन नंबर 5 की। राधिका ट्रेवल प्राइवेट लिमिटेड परचेज द बस चेसेस फ्रॉम ज्योति मोटर्स, ठीक है, उसका कंसिडरेशन दिया 80 लाख रुपए, दैट इज बिटवीन राधिका ट्रेवल्स एंड ज्योति मोटर्स, ठीक है, 1 अगस्त को। देन राधिका ट्रेवल्स सेंट अ बस चेसेस फॉर द बॉडी बिल्डिंग टू हनुमान फैब्रिकेटर्स को उन्होंने बस चेसेस दिया, ठीक है, एंड पेड इन एडवांस टोटल कंसिडरेशन ऑफ ₹25 लाख ऑन 10 अगस्त, ठीक है। पेमेंट कब हुआ? 10 अगस्त को। किसका? जो बस चेसेस दिया था बॉडी बिल्डिंग के लिए। नाउ हनुमान फैब्रिकेटर, ठीक है, जो थर्ड पार्टी है, आफ्टर कंप्लीटिंग द बस बॉडी इन्फॉर्म राधिका ट्रेवल्स शॉप, ठीक है, ऑफ हनुमान फैब्रिकेटर्स ऑन 7 सितंबर, 7 सितंबर को इन्फॉर्म किया। कंप्लीशन कब हो गया था वर्क? 1 सितंबर को हो गया था। एंड कन्फर्म दैट द बस बॉडी वॉज इन अकॉर्डेंस विद द टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ओके, नाउ हनुमान फैब्रिकेटर रेज्ड द इनवॉइस on 15th September and supplying chassis along with the bus body to construct along with the invoice 16th September. Now state the time of supply in case of supply made by Hanuman fabricators out of choice given. So supply ये सबसे पहले एक supply of service है, ठीक है। तो supply of service में invoice कब इशू करना होता है? जब completion होता है। तो 1 सितंबर को वर्क कंप्लीट हुआ, वहाँ से 30 डेज में इनवॉइस इशू हुई कि नहीं हुई? तो इनवॉइस इशू हुई 15 सितंबर को, ठीक है। और 15 सितंबर को इनवॉइस इशू हुई है और पेमेंट कब आया है? 10 अगस्त को। तो इन दोनों में से अर्लियर कौन है? 10 अगस्त। तो टाइम ऑफ सप्लाई होगा वो होगा डेट ऑफ पेमेंट, नॉट डेट ऑफ इनवॉइस, ठीक है। तो 10 अगस्त इसका आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें। बांके बिहारी ओवन्स अ फेमस स्वीट शॉप, ओके, रेस्टोरेंट इन मथुरा। सो दिस इज द सप्लाई ऑफ गुड्स, ठीक है। He get an order of 200 kg of sweets on 2nd May from Ghum Ghum Limited, located and registered in the same locality of Mathura, for the total consideration of ₹1 lakh, ठीक है। Complete order of the sweet was delivered to Ghum Ghum. Goods कब डिलीवर हो गया? 5 मई को। तो इस दिन इन्वॉइस इशू हो जानी चाहिए थी। लास्ट डेट ऑफ इशू ऑफ इन्वॉइस 5 मई, बट इन्वॉइस इशू की है इन्होंने 6 मई को। अकाउंटेंट छुट्टी पे था और उसने इन्वॉइस 6 तारीख को इशू करी है। When the accountant joined the office after leave, तो उसने 7 तारीख को पेमेंट किया पूरा का पूरा। तो गुड्स के केस में टाइम ऑफ सप्लाई कब होगी? जब गुड्स या तो डिलीवरी के लिए रिमूव हो जाता है, तो उसी दिन आपको इन्वॉइस इशू करनी पड़ती है, उससे पहले इन्वॉइस की तो वो आपकी टाइम ऑफ सप्लाई हो जाएगी। तो इन्वॉइस तो 6 तारीख को की है गुड्स आउट होने के बाद, तो 5 तारीख लास्ट डेट ऑफ इशू ऑफ इन्वॉइस इज 5th May। सो करेक्ट आंसर इज बी, 5th May। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 7th। Messrs. Dhoom Furniture Mart, located and registered in the GST in the Chhattisgarh, sells furniture from its showroom to Lucky Dhaba, ठीक है। वो कहाँ रजिस्टर्ड है? झारखंड में। ये हमारा बिल टू शिप टू मॉडल है, बिकॉज लकी ढाबा डायरेक्शन दे रहे हैं किसको? धूम फर्नीचर्स को, कि उन्हें सामान पहुंचाना है प्यारे लाल को जो बिहार में है, ठीक है। तो इस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगी? जिसने डायरेक्शन दिया लकी ढाबा जो हमारे झारखंड में लोकेटेड है, तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगी? झारखंड। करेक्ट आंसर इज बी। क्वेश्चन नंबर 8। मेसर्स बुल्डवेल इंजीनियरिंग कंसल्टेंट, लोकेटेड एंड रजिस्टर्ड इन गुरुग्राम, ठीक है, हरियाणा में, प्रोवाइड आर्किटेक्चर सर्विसेज दे रहे हैं किसको? ताज इंडिया लिमिटेड को, फॉर इट्स होटल टू बी कंस्ट्रक्टेड ऑन लैंड सिचुएटेड इन दुबई। तो दुबई में उनकी लैंड सिचुएटेड है। तो इमूवेबल प्रॉपर्टी कहाँ सिचुएटेड है? इन दुबई, ओके। And when property is outside India and the receiver and supplier is in India, then place of supply is place of recipient. तो recipient का place कौन सा है? मुंबई। तो ताज इंडिया लिमिटेड
का जो प्लेस होगा, वो प्लेस ऑफ सप्लाई होगा, वो होगा मुंबई महाराष्ट्र। करेक्ट आंसर इज बी। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें, अफलातून स्पेस लिमिटेड लोकेटेड एंड रजिस्टर्ड इन हरियाणा सप्लाई स्पेयर पार्ट्स टू मिस्टर लक्ष्मी खुराना। ओके, एक अनरजिस्टर्ड पर्सन है, अनरजिस्टर्ड पर्सन को करा रहे हैं जो राजस्थान में लोकेटेड है। नाउ लक्ष्मी खुराना बुकड द कुरियर हिमसेल्फ फ्रॉम ब्लैक डार्ट, उन्होंने खुद बुकिंग करी ब्लैक डार्ट से एंड रजिस्टर्ड इन दिल्ली फॉर द डिलीवरी ऑफ राजस्थान। ठीक है, नाउ ब्लैक मार्ट कुरियर पिक्ड अप द गुड्स फ्रॉम हरियाणा। ठीक है, दिस इज द की पॉइंट ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, व्हेन अनरजिस्टर्ड पर्सन खुद डिलीवरी खुद बुक करे कुरियर हिमसेल्फ, देन उस केस में जहाँ पे आपने गुड्स पिक किया है वो आपका प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर इज हरियाणा, बिकॉज गुड्स आर पिक्ड अप फ्रॉम हरियाणा। तो करेक्ट आंसर इज ए। क्वेश्चन नंबर 10, जावेद अनरजिस्टर्ड पर्सन residing in Lucknow, okay, UP, went to Delhi for seeking admission of his child Mr. Arjun in CA IPCC. Now Javed got the demand draft generated in ICICI Bank of Delhi, ठीक है, and depositing a registration fees of ICICI. Now Javed does not have a bank account, उनका बैंक अकाउंट भी नहीं है उस बैंक में, and the bank does not have a policy of KYC requirement for the customer not having account with office. okay, उन्होंने उसका एड्रेस भी नहीं लिया। नाउ अगर उनका अकाउंट उस केस में होता, अगर उनके पास उसका एड्रेस होता तो जावेद का प्लेस लोकेशन और प्लेस ऑफ सप्लाई होता, बट इस केस में ना तो उनका अकाउंट है उधर, ना उनके पास उनका एड्रेस है। तो इस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई जो होगा वो होगा बैंक का जो एड्रेस है दिल्ली। प्लेस ऑफ सप्लाई इज़ द प्लेस ऑफ सप्लायर। ओके, सो यहाँ पे जो प्लेस ऑफ सप्लाई होगी वो होगी दिल्ली। ओके, करेक्ट आंसर इज ए। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट वाइल इशूइंग टैक्स इनवॉइस। टैक्स इनवॉइस इशू करते वक्त कौन कौन से स्टेटमेंट यहाँ पे जो है दिए हैं वो सही है। ठीक है, प्लेस ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ इंटर स्टेट सप्लाई इज़ नॉट रिक्वायर्ड टू बी मैंशन, नहीं वहाँ पे मेंशन करना ज़रूरी होता है, तो ये इनकरेक्ट है। अ रजिस्टर्ड पर्सन हुज एनुअल टर्नओवर इज 50 लाख इन द प्रेसिडिंग फाइनेंस मैंडेटरी रिक्वायर्ड टू मेंशन HSN कोड, ये कंपलसरी नहीं है, कंपोजिशन स्कीम को नहीं लगाना होता, तो दैट इज़ इनकरेक्ट। क्वांटिटी इज़ नॉट रिक्वायर्ड टू बी मेंशन इन केस ऑफ गुड्स व्हेन गुड्स आर सोल्ड एज इन वेयर इन द बेसिस, सो ये भी गलत है, वहाँ पे क्वांटिटी को मेंशन करना जरूरी होता है। ठीक है, डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी गिवन इन केस ऑफ मिक्स सप्लाई, डिस्क्रिप्शन देना जरूरी होता है। तो चारों के चारों स्टेटमेंट है वो गलत है, सो नन ऑफ द स्टेटमेंट इज करेक्ट। करेक्ट आंसर इज सी। क्वेश्चन नंबर 12, इसको आप सिंपल समझिए, जब भी आप ना तो रेट डिटरमाइन कर पाए ना आप प्लेस ऑफ सप्लाई डिटरमाइन कर पाए, ठीक है, नॉट डिटरमाइन एट द टाइम ऑफ रिसिप्ट ऑफ एडवांस, एडवांस के टाइम अगर आप सप्लाई ऑफ सर्विस को डिटरमाइन नहीं कर पाओ, ठीक है, तो उस केस में आप रेट और उसको कैसे सप्लाई मानोगे, तो उस केस में आप 18% इंटर स्टेट सप्लाई मानोगे। ठीक है, तो क्वेश्चन ऐसे आएगा, व्हाट आर द रेट ऑफ टैक्स एंड नेचर ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस इफ द सेम इज नॉट डिटरमाइंड एट द टाइम ऑफ रिसिप्ट ऑफ एडवांस। ठीक है, तो उस केस में 18% और इंटर स्टेट मानेंगे। करेक्ट आंसर इज सी। Which of the following activities taxable under GST? So out of 6 activities, कौन सी एक्टिविटीज़ टैक्सेबल है GST में, तो एक एक पढ़ते हैं। अगर पिलग्रिमेज सर्विस दे रहे हैं, हॉस्पिटल की सर्विसेज दे रहे हैं फूड की, ठीक है, टू अटेंडेंट विजिटर जो एडमिट नहीं है, तो वो टैक्सेबल होगी। फर्स्ट इज टैक्सेबल। सेकंड, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर बाय नॉन AC रेलवेज, ये एग्जाम्प्ट है, सो सेकंड एग्जाम्प्ट है। थर्ड, ब्रांड एम्बेसडर, जैसे ही ब्रांड एम्बेसडर नाम सुना वो टैक्सेबल होगा, चाहे कंसिडरेशन कितना भी हो, तो थर्ड सर्विस इज ऑल्सो टैक्सेबल। फोर्थ, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस बाय एयर फ्रॉम वन प्लेस ऑफ टू अनदर प्लेस इन इंडिया, अगर आउटसाइड इंडिया हो तो एग्जाम्प्ट होती है, बट इन इंडिया है तो टैक्सेबल होगी। फोर्थ सर्विस इज ऑल्सो टैक्सेबल। तो अभी कौन कौन सी टैक्सेबल होगी, फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ। ठीक है, सर्विस बाय लोडिंग अनलोडिंग पैकेजिंग स्टोरेज वेयर हाउस ऑफ राइस, सो ये एग्जाम्प्ट है, एक अमेंडमेंट आया था कुछ टाइम पहले, उसकी वजह से एग्जाम्प्ट है। सर्विस प्रोवाइडेड बाय GTA विद द कंसिडरेशन चार्ज फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स और सिंगल कैरेज ऑफ 900, सो ये भी एग्जाम्प्ट है, 1500 से कम है, इसलिए ये पे टैक्स नहीं लगेगा। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, सी। फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ इज टैक्सेबल, अदर सर्विसेज आर एग्जाम्प्ट। करेक्ट आंसर इज सी। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस कंपाउंडिंग ऑफेंस इज नॉट अलाउड। 138, तो मैंने तीनों के तीनों स्टेटमेंट पढ़े हैं पहले से, और तीनों स्टेटमेंट में अगर आपने पहले से कोई कंपाउंडिंग ऑफेंस कर रखा है तो उसके अंदर कंपाउंडिंग नहीं होगी।
अगर आपने कोई बाई लॉ ऑफ कोर्ट के हिसाब से कन्विक्ट किया है ऑफेंस तो उसमें भी कंपाउंडिंग नहीं होगी। अगर आपने एक्यूज्ड ऑफ कमिटिंग एन ऑफेंस अंडर जीएसटी लॉ तो उस केस में भी कंपाउंडिंग नहीं होगी। तो जितने भी केसेस हैं इनमें कंपाउंडिंग नहीं होगी, ठीक है। करेक्ट आंसर इज डी। क्वेश्चन नंबर 15, इफ टैक्सेबल पर्सन हैज डन द फॉलोइंग एक्ट इंस्पेक्शन कैन बी ऑर्डर्ड। सो अगर उसने कोई भी सप्रेशन किया, ट्रांजेक्शन ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विस का, या स्टॉक इन द गुड्स इन हैंड का सप्रेशन किया, या कोई कॉन्ट्रावेंट किया एवेड टैक्स इवेड करने के लिए, तो उन केसेस के अंदर इंस्पेक्शन हो सकती है। तो तीनों केसेस के अंदर इंस्पेक्शन हो सकती है। करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 16, इसमें यही पूछा है कि बेस्ट जजमेंट असेसमेंट की टाइम लिमिट क्या है। व्हाट इज द टाइम लिमिट ऑफ इशुएंस ऑफ ऑर्डर ऑफ बीजीए। तो इसकी 5 साल है, 5 साल फ्रॉम द डेट ऑफ एनुअल रिटर्न, ठीक है। तो ये करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17, करेक्ट आंसर इज ए ऑफ 16 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17, वेयर एनी एजेंट सप्लाइड गुड्स ऑन बिहाफ ऑफ हिज प्रिंसिपल, ठीक है। तो उस केस में लाइबिलिटी किसकी होगी, दोनों की। एजेंट और प्रिंसिपल दोनों जॉइंटली और सेवरली लायबल होंगे जीएसटी पेबल करने पे। तो करेक्ट आंसर इज सी, बोथ ए एंड बी, ओके। क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज आर एग्जेम्प्ट फ्रॉम जीएसटी। कौन कौन सी एक्टिविटीज़ एग्जेम्प्ट हैं। तो जितनी भी तीनों एक्टिविटीज़ हैं सब टैक्सेबल है। क्यों, अगर आप पिलिग्रिमेज के देते हो तो उसके अंदर सिर्फ 2 है, 2 लोगों के अलावा कोई भी ये सर्विस देगा तो वो टैक्सेबल होगी। सेकेंड, सर्विस प्रोवाइडेड बाय बिजनेस फैसिलिटेटर टू एन इंश्योरेंस कंपनी इन अर्बन एरिया, अर्बन एरिया में दे रहे हो तो वो टैक्सेबल होगी। अगर राइस की पैडी को माइलिंग कर रहे हो तो वो भी टैक्सेबल होगी। तो नन ऑफ द अबव इज एग्जेम्प्ट, सब टैक्सेबल है यहाँ पे। करेक्ट आंसर इज डी। क्वेश्चन नंबर 19, इन 4 स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, ठीक है। तो अगर आईटीआई से की सर्विसेज को अगर दे रहे हो, आईटीआई की सर्विसेज ट्रेनिंग की, गवर्नमेंट प्रोवाइड आईटीआई टू इंडिविजुअल ट्रेनर, तो एग्जाम्प्ट होता है, करेक्ट है, पहला स्टेटमेंट सही है। सर्विस प्रोवाइडेड बाय स्टेट गवर्नमेंट टू द प्राइवेट सर्विस प्रोवाइडेड बाय वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पेशेंट, एम्बुलेंस की कोई भी सर्विस हो सब एग्जाम्प्ट होंगी, तो सेकंड स्टेटमेंट भी करेक्ट है। थर्ड, सर्विस ऑफ रेंटिंग ऑफ शॉप्स एंड हॉस्पिटल आर एग्जाम्प्ट फ्रॉम टैक्स, सो ये स्टेटमेंट गलत है। थर्ड, जो भी रेंट आता है हॉस्पिटल को वो टैक्स होगा, टैक्सेबल होगा। फोर्थ, सर्विस प्रोवाइडेड बाय पुलिस टू पीएसयू आर टैक्सेबल, सो पहला दूसरा स्टेटमेंट और चौथा स्टेटमेंट सही है, बाकी सारे स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। तो करेक्ट आंसर इज ए, ओके।